وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس شان سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے داموں بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ایکچولی میں بولنا چاہوں گا تھوڑی دیر کہ آپ لوگ ایسا لگ رہا ہے ہم اسٹیج والوں کو جو نا ٹھیکہ دے دیا ٹھیکہ۔ پہلے ہوتا کیسا تھا کہ مزدور لوگ کو بلاتے تھے، میں معافی چاہوں گا میری تھوڑی زبان ایسے کیونکہ میں بمبئی میں بڑا ہوا، تو پبلک کیا کرتی تھی پہلے مزدور کو بلاتی تھی، روزانہ دہاڑی 300 دیتی تھی، اور پبلک سوچتی تھی کام ہوئیں گا، لیکن کام نہیں ہوتا تھا، مزدور کام چوری کرتے تھے۔ تو لوگوں نے دماغ لایا اور ٹھیکے پہ دے دیا، پلسٹر بھی تم کرو، اینٹیں بھی تم لاؤ، بالو بھی تم لاؤ۔ ہم کو بھی یہی کیا ٹھیکہ لے لیے مولوی صاحب، تقریر بھی آپ پڑھو، نعت بھی آپ پڑھو، سبحان اللہ بھی آپ بولو، ہم تو خالی فالتو میں آئے مسجد میں، ہے نا؟ بول دیجئے سبحان اللہ۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے طہارت ہے۔ میرے ساتھ مل کے درود پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں بتانا چاہوں گا کہ میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں بھائی، اگر آپ غلط فہمی، میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ پڑھیں، آپ کو بھی ثواب میرے کو بھی ثواب۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جمع ہوئے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں موت کے سلسلے میں، کہ یہ 40ویں کی محفل ہے، وقت بڑا قلیل ہے، شارٹ میں لپٹائیں گے انشاءاللہ۔ یہ 40ویں کی محفل ہے، یہ موت جو ہے نا بڑی عجیب ہی چیز ہے، ہم لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، شاید ہم کو مطلب ہی نہیں۔ آج جو یہاں پہ اتنے لوگ جمع ہوئے نا، سب جلسہ سننے آئے، کوئی عمل کرنے کے ارادے سے نہیں آیا۔ اکثر میں سب کا دعویٰ نہیں کرتا، اکثر اسی ارادے سے آئے کہ ہم سنیں گے، چلے آئیں گے، باہر سے ہو، مفتی صاحب آ رہے ہو، حافظ صاحب آ رہے ہو، عالم صاحب آ رہے ہیں، سنیں گے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں کہ انشاءاللہ ہم جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ نیت کا جو ہے نا عمل کا دار و مدار نیت پہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم لوگ یہ جو ہے بہار ہے، میں بامبے سے چل کر بنگال سے پھر بہار آیا، تو یہ چیز میں نے نوٹس کیا کہ بہار والے جو ہے نا الگ طرح سے رہتے، بنگال والے الگ طرح سے رہتے، مہاراشٹر والے الگ سے، اختلاف ہے، اختلاف۔ بہار والے رائے کا تیل کھاتے، بنگال والے رائے کا تیل کھاتے، مہاراشٹر والے بادام کا تیل کھاتے، کرناٹکا والے ناریل کا کھوپرے کا تیل کھاتے۔ زبان میں لے لیجیے، بہار بہاری، بنگال بنگالی، گجرات گجراتی، مراٹھی، اختلاف ہے۔ ان لوگوں کو بولوں گا سب لوگ اے آئی ایم کو سپورٹ کرو، کوئی نہیں کرے گا، کوئی بولے گا کانگریس اچھا، کوئی بولے گا بی جے پی اچھا، کوئی کچھ، اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے۔ جدھر بھی جائیں گے، بھاشا سے لے کر کپڑوں تک، کھانے سے پینے تک، رہنے سے سونے تک، ڈیزائننگ پہ، اسٹائل پہ، ہر چیز پہ اختلاف ہے۔ اگر کسی چیز پہ اختلاف نہیں ہے تو وہ ہے موت۔ قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ اس بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں یکساں ہے۔ تو یکساں کیا ہے؟ وہ ہے موت، جس کے لیے شاعر کہتا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو موت کو سنا نہیں، ہم نے کیا کیا معلوم، خالی موت کو تصور کر کے، تصور بھی نہیں کیا، سوری، موت کو سوچا ہی نہیں، ہم نے صرف بیانوں تک، مسجد تک محدود رکھ دیا۔ اور اللہ معاف کرے، ہم تو مسجد بھی جانے کے عادی نہیں رہے، ہم تو مسجد بھی جانے کے عادی نہیں رہے۔ آج ہم کہاں جاتے سمجھ رہے نا؟ مفتی صاحب کی آمد ہوئی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
अब ये तो औकात से ज्यादा वाली बात हो गई कि हजरत बैठे हैं और मैं कुछ बोलूं। 10 मिनट लूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा ना आप मेरी तरफ, मैं आपकी तरफ, थोड़ा थोड़ा। आज हम मस्जिद को छोड़ के कहाँ जाते मालूम? अभी मैं आया, सुबह जल्दी आ गया था। मैं एक शख्स से मिला, वो बोले प्यारे, मैं पूछा प्यारे इस्लामी भाई कैसे है, उनसे खैरियत पूछा। उन्होंने यहाँ का हाल बताया तो बता रहे थे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा शराबी है। मैं उनसे पूछा क्या ये मुसलमानों की बस्ती है? बोले बिल्कुल सब मुसलमान है। मुसलमानों की बस्ती में शराबियों की तादाद, अल्लाह अकबर। कैसी बात है मेरे अजीज भाइयों, हमने शराब को इतना आसान कैसे बना दिया कि हमारे बस्ती में जहाँ चारों तरफ से मुसलमान हो, वहाँ कोई शराब पी के अपने घर पे आएगा, कोई शराब पी के हमारे बस्ती में एंट्री लेगा, उसके बाद गाली गलौज करेगा, शोर शराबा करेगा, माहौल खराब करेगा। मेरे भाइयों ये हमारा अमल नहीं है, ये हमारा तरीका नहीं है, ये हमारी बस्तियों की शान नहीं है। तो हमारी बस्तियों में तो शराबियों को एंट्री भी नहीं है। हमारे बस्तियों में शराबी घूमे तो मुसलमानों को गवारा नहीं है। जिस चीज के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, उस चीज को खुलेआम ऐलानिया तौर पर करने वाला हमारी बस्ती में घूमेगा। हमारी गैरतें कहाँ चली गई, हमारी इज्जतें कहाँ चली गई, हमारा शऊर कहाँ चला गया। अच्छा हमारी जमीन में कोई दखल के अंदाजे से घुसे तो हम बड़े गुस्से हो जाते हैं, लेकिन शराबी से आदि हजरत ने सुन्नियत का शेर होते हुए ऐसा मुफ्ती साहब ने बयान किया कि दिल बाग बाग हो गया। लेकिन शायद हमारे कानों तले जो है ना जू भी नहीं रहती, हमारे को परवाह ही नहीं है। अच्छा एक बात मैं और बताता चलूं, हजरत मौजूद है, आप सोचे, बोलते ना तस्वीर, सोचे मोबाइल फोन, तो आपके जहन में एक तस्वीर आएंगी जिसमें एक कैमरा होगा, एक फ्रंट कैमरा होगा, सेल्फी कैमरा होगा, चार्जिंग पॉइंट रहेगा, एयरफोन का रहेगा, सब उसका जितना भी मैटर है ना सब रहेगा। अगर आप बकरा सोचेंगे ना, बकरा तो बकरे के हाथ पैर, बकरे के पैर, आँख, कान, यहाँ तक कि उससे क्या क्या बनता है, नली निहारी, चाप, कलेजी, बोटी, सब याद आ जाएगा, सब जहन में फिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं ना इस्लाम इस्लाम, तो हमारे जहनों में कुछ नहीं आता। हमारे जहनों में ना नमाज आती है, ना हमारे जहनों में रोजा आता है, ना हज आता है, ना ज़कात आता है, ना उसमें अखलाक आता है, ना इकराम मुस्लिम आता है, ना दावत और तबलीग, कुछ नहीं आता। तो क्या है, एक इस्लाम नाम का वर्ड जिसको लेके हम बहुत चिल्लाते हैं, हाँ मैं मुसलमान, मैं इस्लाम का मानने वाला, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी मुहर्रम आएगा, ढोल ताशे लेके निकल जाएंगे, अब्बा की शादी है ना, ढोल ताशे लेके निकल जाएंगे और चिल्लाएंगे हाँ मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम का परचम लेके ढोल ताशे बजाएंगे। और मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि बिस्लरी के बोतल में हजरत शराब डाल के पीते हैं। यह मुसलमानों का अमल है। मुझे बताओ कि तुम्हारे जमीन कैसा मुर्दा हो चुका है, तुम्हारी हमारी जमीरें कितनी मर चुकी है। कल कयामत के दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम कैसे हाजिर होंगे। और आका सल्लल्लाहु ने अगर पूछ लिया कि मेरे प्यारे तूने मेरे नवासे की याद बनाई, उसमें शराब पिया, उसमें ढोल ताशे बजाए, हम किस मुंह से हम वक्त अपना सामना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करेंगे। हमारी नजरें झुक जाएंगी और वो ऐसा वक्त जब ना बाप बेटे का होगा, ना माँ बेटी की होंगी, कोई रिश्तेदार काम नहीं आने वाला। ऐसे वक्त में अगर हम जलील हो जाएंगे तो मेरे भाइयों हमारे क्या अजर होगा। मेरे अजीज भाइयों ये क्या पड़ी है, हमें हमने क्या लगा रखा है। मैंने अभी हदीस पाक पढ़ी, वो इदात साबत उम्मती सखदत मिनल्ला, इसका मफहूम है कि जब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत गालियां देने लगेंगी तो अल्लाह के नजरों से गिर जाएंगी। आज हम इतना गिर चुके कि गालियों में हमारा स्टेटस सबसे ऊपर, शोर शराबे में हमारा स्टेटस सबसे ऊपर, गंदगी में हमारा स्टेटस सबसे ऊपर, शराबखोरी में, हर चीज में बुराई बोल के अगर आप कुछ भी जोड़ेंगे ना सब में हमारा स्टेटस अव्वल है। लेकिन नमाज बोलेंगे है ही नहीं, एकदम गायब है। मस्जिद में कभी कभी इमाम साहब भी अकेले रहते, रोजा बोलेंगे मालूम ही नहीं। अगर शरीयत के नाम पे हम कुछ करते हैं ना तो सिर्फ झूठे रस्मों रिवाज जो शरीयत का हिस्सा ही नहीं। अभी मैंने एक बात देखा था यही बिहार में कि शादी हो रही थी, दूल्हे की एंट्री हुई, ऐसा आरती लेके उतार रहे। क्या है भाइयों, किसने बता दिया? शरीयत का अमल नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, कुछ नहीं है, फालतू है, फिजूल है। वो थाली लेके तुम्हारा हुआ खड़ा रहना फिजूल है। यूं आरती उतारना, यूं ढोंग करना, 40वें में, तीजे में, और तीजा चौथा करते ना उसमें भी अजीब अजीब रस्मों है। कोई साग खिलाता है, कोई मछली, कोई घास को लेके क्या क्या अजीब अजीब रस्में। अरे उलमाओं से पूछने की आदत कब बनेगी हमारी? हम अपने मर्जी के मालिक हो गए। शरीयत किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जो मन में आया घुसेड़ दिया और चला लिया, हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों। शरीयत वही है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और हमें उसी पे अमल करना है। और अगर कोई एक्स्ट्रा करता है ना मेरे भाइयों तो मेरे अजीज भाइयों आज हमारा स्टेटस ऐसा हो गया है, हमने हर चीज की वैल्यू बढ़ा रखी है, सिर्फ दीन की वैल्यू को घटा के रखा है। एक यहूदी होता है ना पादरी ईसाई, अगर उन ईसाइयों की शादी होती है ना, शादी
तो उनका पादरी घर से बाहर नहीं आता, चर्च से बाहर नहीं आता, पंडाल पे नहीं आता, डॉर्मेट्री हॉल पे नहीं आता, गार्डन में नहीं आता, वो जोड़े को लेकर पब्लिक को लेके जाते कहाँ, चर्च पे। लेकिन हमने अपने उलमाओं को इतना कमतर समझ लिया, इतना बेकार समझ लिया कि हमारी शादी चाहे डॉर्मेट्री हॉल में होए, चाहे गार्डन में होए, चाहे कहीं भी होए, हम इमाम साहब को लेके जाएंगे। मस्जिद में निकाह नहीं करवाएंगे, मस्जिद में निकाह का रिवाज ही खत्म हो गया। एक अजीम सुन्नत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में निकाह होना ये खत्म ही हो गया। 40वां करते हम, 20वां करते हम, शादी करते हम, कुछ भी करते, कोई भी फंक्शन, कोई भी त्योहार मनाते शरीयत के मुताबिक नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि हमने सीखा नहीं, हमने जाना नहीं, हमने पूछना नहीं है, हमने अपनी करनी है, बस अपने मन की करनी है। इसे अगर आलिम साहब जैसा हजरत ने भी बोला कि चढ़ जाते, भाई चढ़ना तो आदत ही बन गई है, लगता है सारा गाय का गोश्त यही खाते और उलमा कुछ खाते ही नहीं और पब्लिक खाती ही नहीं। मेरे अजीज भाइयों, हम अगर कुछ लोग बोलते हैं, एक बार से मैंने कहा कि मेरे प्यारे साहब भाई अब क्यों निकालते ये मुहर्रम में ढोलता शेर, बोलते तलवार देख के उनके दिल में हैबत तारी हुई। वाह, अरे वो दिन कहाँ चले गया जब सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने मिसवाक से तलवार और नेज़े का मुकाबला किया। कहाँ चली गई आपकी यादें? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे और अल्लाह तबारक व तआला के दीन पे कामयाबी है। क्योंकि आप ये बात कान खोल कर सुन ले, दौलत में कामयाबी नहीं है। अगर दौलत में कामयाबी होती तो कारून कामयाब होता, अगर हुकूमत में कामयाबी होती तो फिरौन कामयाब होता, अगर वजारत में कामयाबी होती तो हामान कामयाब होता। आज हम जो बड़े शौक से करते ना, झूठ बोल बोल के बिजनेस, अगर बिजनेस में कामयाबी होती ना, तिजारत में कामयाबी होती तो उबय बिन खलफ कामयाब होता। लेकिन ये सब नाकाम थे, फिरौन भी नाकामयाब, हामान भी नाकामयाब, कारून भी नाकामयाब, उबय बिन खलफ भी नाकामयाब। तो पूछेगा मौलवी साहब कामयाब कौन है? तो मैं कहूंगा अबू ज़र गिफारी कामयाब थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में दीन था, दौलत नहीं थी, हुकूमत नहीं, वजारत नहीं, दीन। इस दीन में ही अल्लाह ताला ने दोनों जहान की कामयाबी रखी। जिसके जिंदगी में दीन होगा वो यहाँ भी कामयाब रहेगा और वो आखिरत में भी कामयाब रहेगा। लेकिन हमारे को दीन से क्या लेना ही नहीं। हमारा क्या होता है मालूम? सुबह फजर बिस्तर में, अभी रात भर सुनेंगे जलसा। मैं आपसे ये कहता हूँ, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, फजर की नमाज अगर छूटती हो तो रात भर मत सोना। लेकिन यहाँ रात भर सुन के अगर हम फजर की नमाज में सो गए ना, रात भर बेकार है, फालतू है, फिजूल है। और जो मेरे इस्लामी भाई ईशा नहीं पढ़े ना, पढ़ के सोना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कल को हमारा भी कोई 40वां मना रहेगा। मेरे अजीज भाइयों, हमको परवाह ही नहीं है। हम रात बिस्तर में, फजर तो बिस्तर में, जोहर पटवा सुखाने में, असर किधर मालूम, चाय की टपरी में, मगरिब किधर मालूम, सोशल मीडिया पे चैपे करते हुए, और ईशा किधर मालूम, हमारे इस्लामी भाई आते ठीक है लेके आते एकदम जबरदस्त वाला खंबा। मैं माफी चाहूंगा हजरत बैठे, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। ये खंबा लेके आते, पूरा दिन गया, कारगुजारी कौन देगा? अरे मेरे अजीज भाइयों, क्या हम इतने पावरफुल हो गए कि हम अपना खाने का इंतजाम कर सके? क्या हम इतने पावरफुल हो गए कि अपने जिस्मों को चला सके? क्या हम इतने पावरफुल हो गए कि हम अपने आंखों को देखने की ताकत दे? नहीं मेरे भाइयों, हर चीज पर कुदरत अल्लाह की है। अगर वो चाहेगा हम अभी लंगड़े लूले हो जाएंगे, वो चाहेगा तो हम पूरे कटियार का भी खाना खा जाएंगे ना तो पेट नहीं भरेगा। अगर वो चाहे तो हम पूरे कटियार का पानी पी ले, हमारी प्यास नहीं बुझेगी। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह से डरना बहुत जरूरी है। हर काम हमें अल्लाह की रजा के लिए करनी है। हमने शरीयत को इतना हल्का बना लिया। एक छोटी सी जमीन का प्रॉब्लम है ना, 2 इंच 4 इंच का, तो वो नापने वाला क्या बोलते हैं उसको, वो बुलाएंगे, वकील बुलाएंगे, फिर उसमें 4-5 छेले चपाटे बोलते, क्या उसको दलाल बोलते, दलाल। वो दलाल बिलाल को बुलाएंगे, सबको 500-500 रुपया देंगे, लेकिन एकदम परफेक्ट मामला करेंगे। लेकिन जब शरीयत की बात आती है ना, तो हम किसी को नहीं पूछते। शरीयत की बात आए तो हम किसी को नहीं पूछते, ना मौलवी साहब को पूछते, ना मुफ्ती साहब को पूछते। जब शरीयत की बात आती है तो हम ही मुफ्ती, हम ही आलिम, हम ही सब कुछ बन जाते हैं। ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह को हमने जवाब देना है। ये कैसे चलेगा? हमारी बस्तियों में शोर शराबा, हमारी बस्तियों में नाच गाने, शादियों में तो ऐसा डीजे बजाते हैं जैसे आज ये जन्नत को जा रहा है। क्या है? और अक्सर मैं देखा हूँ शादियों की मिलादों में कि रात को मिलाद करेंगे शादी की, सुबह शादी, उसी माइक में, उसी बॉक्स में गाना चालू है, मजा आ रहा है, बहुत हंसी आती है, बहुत मजे उड़ाते हैं। मेरे अजीज भाइयों, आज हमारी महफिलों से, हमारे बस्तियों से कोई गुजरता है ना, तो उनको एहसास नहीं होता कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है। हमारे बच्चे बेतरतीब,
ہمارے زبانوں سے ایسی کسی گالیاں نکلتی. اچھا ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ داڑھی رکھنے سے ڈرتے, کرتا پاجامہ پہننے سے ڈرتے. ڈریں گے نا ہم تب تک ڈرتے ہی رہیں گے, ہم پر کافروں کا ظلم جاری رہے گا, کیونکہ ہم نے گالیوں کو اتنا عام کر دیا اور اللہ کی نظروں سے